The another important religion started in 6th century BCE, and since we have discussed it in previous classes that Gautam Buddha born before almost 23 years before the birth of Mahavir Jain. But whenever it comes to the literature of these two religions, first we start with Jainism, and secondly we deal with these philosophy or this religion. So what were the turning point in the world history? So when it comes to the ideological development or development in development of rationality or rational thinking in the world, that begins with the birth of Zarathustra, in Iran, Kongzi in China, Socrates and Plato and Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha. These five important thinkers, philosophers are considered as the most important person during first millennium BC, yani 1000 in between 1000 BCE to 1 BC, yeah, 1 AD. So these are the important people, important thinkers, and everybody knows about the Socrates, Plato and Aristotle. Most of the people, whether they are doing history, whether they are doing political science, even geography, biology, who was the father of biology? Aristotle. So most of you are aware about Plato, Aristotle and Socrates. No? These all are Guru Chelas, Socrates, Plato and Aristotle. And Kongzi and Zarathustra, these are the earliest thinkers. They started giving the systematic development of anything, whether it is ideas or state or anything else. So they started talking about that. And we all know that during this period in India, particularly in India, what kind of social cultural condition was? सोचने की जरूरत है कि रिलीजियस सोशल कल्चरल कंडीशन क्या था हमारे यहाँ, उसी का आगे के 100 साल तक या 200 साल तक उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. सो along with these international Mahapurush, the great men, these two are born in India. तो इंडिया में ये लोग आए और फिर दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द थिंकिंग एंड थॉट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. तो इनके बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया. अब उस वक्त जब इन्होंने ये बात करनी शुरू की तो उस वक्त कंडीशन क्या था? वी ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, है ना, डिस्कस्ड इन 2-3 times in the same period of time, और अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं. बट स्टिल आई ट्राई टू मेंशन इन ब्रीफ हियर कि बार बार कोई चीज अब देखेंगे तो कई बार हमारे जहन में. एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज पॉइंट्स समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट्स वी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग जैनिज्म. कुछ पॉइंट्स देखें, बड़े कहते हैं ना कि संभाल के बनाए गए हैं, एंड दीज आर फॉर द मेन्स पर्पसेस. सो द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म बोथ, क्योंकि यहां दोनों है, सो वो था क्या था क्वेश्चन जो आगे. तो इनके साथ इनके नाम है
और बहुत सारे इनके साथ और भी लोग थे जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ existence and the relationship between the human beings and the cosmic soul. They try to understand the relationship between the people here, human being particularly, जैसे जीव और, है ना, जीव और जीने दो तो था ही, कि जो निर्जीव और जीव की बात किया उन्होंने वो तो था ही, लेकिन the primary reason behind their thinking and thoughts are finding the mysteries, और इसी के पीछे गौतम बुद्ध भाग के निकले। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या, एंड फॉर व्हाट रीजन वी आर, है ना, इतने सारे जो हमें परेशानियां हो रही हैं, पेन हो रहे हैं, वो किस रीजन से हो रहा है, फिर इसका रिलेशन आगे कैसे है, किस तरीके से है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज क्या है इसके बीच में, human beings and the cosmic soul, whether God is in existence or not, whether God is responsible for the creation of this earth or not, and क्या उन्होंने ये जो कास्ट प्रथा है, जाति प्रथा है, उसको उन्होंने बनाया, पीके ने बनाया, पीके फिल्म तो उन्होंने बनाया, किसने बनाया, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम, देखिए दो चीजें एक साथ हो रही। पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट दीज इंपॉर्टेंट फिलोसफर एंड किंग्स, सॉरी फिलोसफर्स, दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द रीजंस, जो क्वेश्चंस इनके जहन में आ रहे थे, जो जैन ने क्या कहा, सह्यावाद, थिंकिंग, रैशनैलिटी। तो यही टाइम था कि धीरे धीरे 600 बीसी में क्या हुआ, मगध एम्पायर, महाजनपद, एक तरफ टेरिटोरियल स्ट्रक्चर टेकिंग शेप, दूसरी तरफ जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इंडिया में वो डिफरेंट था। इनको उनके बारे में पता हो या नहीं हो, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि वेदर दे वेयर अवेयर अबाउट द ग्रीक एंड रोमन, है ना, सिचुएशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन और नॉट, ये अभी कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था, इनको ये बातें पता थी कि न्यू किंगडम्स, न्यू टेरिटोरियल एरियाज, न्यू किंग्स, देयर स्टाइल्स ऑफ फंक्शनिंग, न्यू इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, यूज ऑफ आयरन, जिसके वजह से आपने कल देखा वैश्यास started challenging the supremacy of Brahmins and Kshatriya, भाई तुम क्यों, पैसा तो मेरे पास भी है, अकल मेरे पास भी है, why you? So उन्होंने चैलेंज कर दिया कि in what way you are supreme, बताओ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने का, and these thinkers attempted to understand these developments, and the whole philosophy, whole ideas developed on the basis of the reasons applied, and they tried to understand the mysteries which was in existence at that time and their relationship, उसको इन्होंने समझने की कोशिश की और उस समझने में ये आगे निकल गए। और कंडीशन हमारे पास पहले से था ही, भाई अगर एक आदमी को मार रहा है, क्यों मार रहा है, एक आदमी पे डोमिनेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक आदमी एक के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसके पास भी दो हाथ है, ऐसा तो नहीं है कि जो अपने आप को भगवान कह रहा है उसके पास दो मुंडी हो और वो ज्यादा बोलता हो, ज्यादा पैदा होते ही संस्कृत बोलने लगा हो। भाई डिफरेंस होना चाहिए ना, कि इफ यू आर सेइंग यू आर सुप्रीम, तो भाई 15 साल बाद तुम ही बोलने लगते हो, हम भी 15 साल बाद बोलते हैं, लेकिन तुम अपने आप को सुप्रीम कैसे बन गए? हम भी जो सीख रहे हो बैठ करके संस्कृत, हम भी सीख सकते हैं। तो उन्होंने ये सारे सिचुएशंस थे, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैक्टर्स थे, सेम फैक्टर्स आर हियर, है ना, इन्फ्लुएंस,
simple doctrines, simple expressions, Buddha's personality himself. 2-3 things are different. And Buddhism was inexpensive. Again, royal support was also there, and here is also there. Here you will find the unique. Mains questions can be found from here. Explain the roles of universities, educational institutions in the propagation of Buddhism or Jainism, even you can say. हालांकि जैनिज्म उतना इससे जुड़ा हुआ नहीं था, लाइक नालंदा एंड तक्षशिला एंड विक्रमशिला, लेकिन द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर. They started a special center. Still, several universities today are having center for Buddhist studies, a special center, center of excellence, and their purpose is to promote, yes, their purpose is to promote the Buddhist ideology and Buddhist religion. Different centers are there. So this one is important. That's why I mentioned here. And again, the zeal and the methods adopted by the monks, उनके स्प्रेड में, हालांकि वहां पर भी थे भिक्षुस, वहां भी थे कि नहीं, लेकिन इनके अंदर जो सिस्टमेटिक एफर्ट था, इन्होंने जो सिस्टमेटिक पोजीशन अडॉप्ट किया, एफर्ट्स अडॉप्ट किए, वो जैनिज्म के कंपैरिजन में ज्यादा सटीक थे, इन्फ्लुएंशियल थे. बिकॉज विल सी इन कमिंग चैप्टर्स कि हाउ दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग देयर मैसेज टू द पीपल, कैसे इन्होंने शुरू किया. सो सम बुद्धा's पर्सनालिटी हिमसेल्फ. Again, I am coming to Islam. I was going through a literature written by a non-Muslim person, Ghanshyam Singh, and when he questioned the conflicts and contradiction between the Islam and different other religion, वो साफ साफ कहते हैं, एक बंदे ने, एक इंसान ने आज 2 अरब के आसपास या उससे ज्यादा मुसलमान बना दी, और उस वक्त सारी फोर्सेस जो थी उनके खिलाफ थी. सारी फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि आज फोर्सेस खिलाफ है, उस वक्त भी थी. बट ड्यू टू हिज पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, उसको आप यहां चाहें तो ला करके देख सकते हैं. इन सेम केस बुद्धिज्म, कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी से जमीन में बैठ करके उनके साथ शेयर करके, और जो उनके आर्डेंट मतलब जो कड़े और बड़े दुश्मन थे, उनको भी अपने सॉफ्ट बिहेवियर और एटीट्यूड से कर दिया. अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां, जब एक बार वो ताइफ के गए थे, उसकी विजिट आप जरूर पढ़ना, एंड ऑल ऑफ यू, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर सहन शक्ति कितनी. तो उसी तरीके से बुद्धा's पर्सनालिटी, एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, एंड देन मॉन्क्स. अगर कहा जाए तो जो एमिनेंट रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, दैट हैज बीन प्लेड बाय दीज मॉन्क्स. चलिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम तो स्प्रेड करेगी ना बैठे बैठे, लेकिन ये घूमते घूमते हर जगह जाकर के इस ऑर्डर को किया. और लास्ट में जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, दे ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. सो प्लेटफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस 6th century BCE by questioning the mysteries, questioning the discrimination, questioning the expenses over the sacrificial traditions, ritualistic tradition, inequality. यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, एंड स्टार्ट होते होते ये काफी आगे की तरफ निकल गया. These are the basic things. What I was telling you is this:
they started asking new questions, and question was about the meaning of life. What was the purpose? हमारा जन्म कैसे हुआ, क्यों, किस लिए हुआ है ना. They started, new question emerged. उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया, since Brahmans born out of the mouth of Brahma, who is the creator of this universe, and that's why they are supreme. So what are the purpose of their birth? वो नहीं बताया. इन्होंने पूछा कि भाई आपके हमारी जिंदगी का मतलब क्या, अर्थ क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ, इज इट रियल, जो आप सुना रहे हो मुझे कि मरने के बाद कर्मा है ना, तो क्या ऐसा है? ये these were the new questions raised during 6th century BC, and again question about rebirth. है ऐसा कुछ तो बता दो. अब उसके लिए ये देखो, ये याद रखना, what they did, है ना, कुताग्रशाला, कुताग्रशाला, ठीक है. क्या था ये? अभी जो हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया, मॉन्क्स, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज. भिक्षुज वेयर मेल एंड भिक्षुनीज वेयर फीमेल. रात में आ जाते थे और फिर वो निकल जाते थे, एंड ओरल मैसेज को पहुंचाना. एंड ये पहले इसको देख लो. In Buddhist text, how many sects? 64 sects have been mentioned. The name of 64 sects. इतने तरह के लोग थे. अब इनको किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं. They used to visit every sects. क्योंकि जैनिज्म भी आ चुका था, ठीक है, हिंदुइज्म था ही. हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे थे. इस्लाम अभी तक नहीं आया था. फिर तुम लोग कहोगे कि है ना, नहीं आया था प्रैक्टिकली, भले हम मान लेते हैं, लेकिन तो ये जितने भी सेक्ट्स थे, सो हाउ मेनी सेक्ट्स? 64 सेक्ट्स थे. एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू गो टू ईच एंड एवरी विलेजेस, ईच एंड एवरी सेक्ट्स. और वो करते क्या थे? अगर आप देखें तो एक झोपड़ी होती है ना, ऐसे करके, है ना, और इसको कुताग्रशाला का, है ना, 4 खंबे लगे हुए हैं चारों तरफ से, और ऊपर एक फूस का बना हुआ है, और ऊपर छोटा सा मंदिर के टाइप का ना लगा हुआ है. तो ये कुताग्रशाला होता था. एंड दे यूज्ड टू कॉल देम देयर, सबको बुलाते थे, बैठते थे. और कई बार इफ देयर इज नो कुताग्रशाला, देन दे यूज्ड टू गो टू द ग्रोव्स. झाड़ियां, जो जंगल झाड़ियां होती थी, वो लोग वहां रहते थे. और दे यूज्ड टू टॉक अबाउट, उनका सीधा चैलेंज होता कि अगर इफ यू विल कन्विंस मी, देन आई विल कन्वर्ट टू योर सेक्ट और रिलीजन. And if I will convince you, then you have to convert. यही होता था. Influence or to be influenced. And these discussion, debates was based on rational thinking. लड़ाई नहीं करनी है. तुम कैसे आ गए इधर हमारे इलाके में? Nothing to do with the fight. क्या करना था? You have to defeat, है ना, मती जनान, मत, दिमाग से डिफीट करना है. एंड इस तरीके से इन्होंने स्प्रेड करना शुरू. आज के डेट में जैसे, हालांकि जमातीज जो हैं इस्लाम के अंदर, कई सारे सेक्ट हैं इस्लाम में, सुन्नी के अंदर भी सब सेक्ट्स हैं,
बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, कादियानी हैं, है कि नहीं, वहाबी हैं, दे स्प्रेड देयर ओन आइडियाज, उनकी जो अपनी फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको स्प्रेड करते हैं। अब वो गांव गांव जाते हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है ना, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं पैदा किया है, असल घर तो वहाँ पर है, आप अभी इज्तिमा है मस्जिद में, तशरीफ ले आइए, वहीं बात होगी, दीन की बात होगी। दे डू दिस, यही काम ये करते, एंड दे यूज टू टॉक रैशनल थिंग, रीजंस पर बेस्ड हो। एक बार जो इंडिया में आपने देखा होगा, ड्यूरिंग कोरोना निजामुद्दीन पे ताला लगा दिया गया, जमाती वहां आते हैं पूरी दुनिया से, और उससे पहले ही तो नया था, उससे पहले ड्यूरिंग दी इंदिरा गांधी रिजीम देयर वाज ए कमिटी, एक कमिटी बनाई गई, एंड दैट कमिटी वाज गिवन द चार्ज टू इन्वेस्टिगेट द एक्टिविटीज ऑफ दीज पीपल। झोला ले लिया, बर्तन डब्बा ले लिया, निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में। अब जांच पड़ताल करने के बाद बहुत सारी आईबी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने कहा कि वो दूसरी बात नहीं करते, जमीन के नीचे की बात करते हैं, और जमीन से दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग, कि हमें पाकिस्तान से लड़ना है कि अफगानिस्तान से लड़ना है कि पंजाब से लड़ना है, किसी से बात नहीं है। उनका दो ही काम है कि मरने के बाद नीचे जाना है, और फिर ऊपर जाएंगे तो क्या मिले, जन्नत है कि नहीं है, और है कि नहीं, सारी चीजें। सो यहां भी यही था कि दे वांटेड टू नो द रियलिटी, दे वांटेड टू स्प्रेड द रियल फिलॉसफी, कि ये जो धर्म और जाति है और रिचुअल है, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं, वो सब बेकार की, हमारे ये बनाई हुई चीजें, कि जो दैवीय नहीं है। दैवीय मतलब दीज आर नॉट डिवाइन, डिवाइन नहीं है। वी हैव क्रिएटेड यू डेलिबरेटली बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये इसके पीछे कोई रीजन नहीं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कुताग्रशाला, एंड न्यू क्वेश्चंस वेयर, व्हाट वेयर द न्यू क्वेश्चंस, है ना। तो न्यू क्वेश्चंस जो थे, वेदर इट वाज जैन्स और बुद्धिस्ट, इनके पास भी यही क्वेश्चन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, क्यों पैदा हुए हम, किस लिए पैदा हुए, सिर्फ खा के मर जाने के लिए, या ये सारा काम करने के लिए, पंडित जी को दान पुण्य करने के लिए, किस लिए हम पैदा हुए। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते। सो एवरीबडी नोज दिस कि द मैन वाज, है ना, सिद्धार्थ, एंड लुम्बिनी वाज द प्लेस, एंड जस्ट लाइक कपिल वस्तु एरिया, एंड नेपाल वाज द पर्सन। तो ये तो एवरीबडी नोज। फादर मदर नेम जानते हैं। जो असल चीज है वो है शाक्या क्लैन। अभी आपने देखा था जंत्रिका क्लैन, एंड दिस क्लैन आर ऑफ क्षत्रिय वर्ण। ये चाहे वो जैन हो या फिर दिस मैन, ये दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे। क्लैन मीन्स खानदान इनका अलग, खानदान क्या था, अलग था। He was from Jantrika clan and he was from, that's why he is known as Sakyam. So these are the important fact. And ये सब स्टोरी है कि एट द टाइम आफ्टर 7 days, है ना, और उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी उनको पाल, है ना, वो उसके बड़ा किया, है ना। एंड इसलिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे ज्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट देने के नाम से, गौतम का मतलब भी होता है नॉलेजेबल पर्सन, तो गौतमी इन्होंने इसलिए उनका नाम रखा गौतम। एंड यशोदा, ठीक है, यशोधरा एंड सन राहुल। सो नाउ द कनेक्शन बिटवीन दिस, एट द एज ऑफ 29, at the age of 29 he left his house,
पर्पस क्या था? दैट वॉज द पर्पस। वो जो कहानी है कि वेन, वो तो काफी प्रोटेक्टिव जोन में रहा करते थे, एंड वंस ही वेंट आउटसाइड एंड व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू हिज होम, रास्ते में 3-4 चीजें देख ली। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, काफी असमर्थ था, एक बीमार व्यक्ति देखा, और एक कंकाल देखा। तो ही बिकम वेरी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, विचलित हो गए। ही वॉज डेविएटेड फ्रॉम, कि वो जो घर में सब कुछ है और यहां देख लो तो ये है तो कैसे। सो इन द सर्च ऑफ द रियलिटी, इसका बेहतर है कि घर ही छोड़ के निकल, चलो बेकार चीज है। सो ही लिफ्ट हिज होम, है ना, एट द एज ऑफ 29 टू बिकम एन एसेटिक, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड, हर एक्शन, हर एक्टिविटीज को एक अलग अलग इनका नाम से इनको जाना जाएगा। और यू हैव टू रिमेंबर इट कि एग्जाम्पल साक्या मुनि, तो साक्या क्लेम से गौतम बन गए, कहां से? गौतमी से। सो द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन occurred to the Buddha after he saw 4 different states: sick man, old man, and corpse, and एक भिखारी को। ठीक है।